students, welcome to Study from Home, a program initiated by Kanamakan Public School, Vrindavan. In the previous video of our chapter 3, Public, Private and Global Enterprise, we studied about the Indian economy. The very first thing that we covered was Indian economy. And when we talk about Indian economy, we classified it into two sectors, public sector and private sector. Public sector and private sector. Private sector, we have talked about all the private sector organizations. We have learned in second chapter from sole proprietorship to joint stock company. So we are not going to discuss the private sector. We were discussing in this chapter about the public sector. Public sector we further classified into three organizations. First one was departmental undertaking. Second one, statutory corporation. And last but not least, government companies. So in the previous video, we studied about Indian economy, public sector organizations and the departmental undertaking. In departmental undertaking, we learned about departmental undertaking are those kind of organizations which are fully controlled by government. These are one of the oldest kind of organization in which the government has only right to decide what to do and how to do, in which no private interference can not be possible. ठीक है, तो हमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जाना, व्हाट एग्जैक्टली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज अलोंग विद इट्स एग्जांपल लाइक रेलवेज, पोस्ट एटसेट्रा. ठीक है, उसके बाद हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कुछ फीचर्स देखे कि हाउ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज गुड फॉर सम ऑफ इट्स फीचर्स एज इट हैज अ सर्विस मोटिव एंड इट डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड for the head, the minister act as the head of departmental undertaking. For an example, railway ministry. Second, we saw some merits of it, why these are meritorious, why departmental undertaking is meritorious to Indian economy. Ultimately, what is the role of studying all those public sector organizations? We need to find the role of these public sector organizations and their impact to our Indian economy. How these factors, how these points, how these public sector organizations are going to affect our daily lives. मैं रेलवेज की बात करूं तो I don't think so that I am going to elaborate why railways have changed our lives. आप जरा कैलकुलेट करके देखिए कितने सारे लोग इंडिया में इस समय भी कम से कम more than 2 to 5 million people are currently in trains. हम जितने में बात कर रहे हैं कम से कम लाखों लोगों को ट्रेन उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचा रही है, लाखों लोगों को ट्रेन उनके घर तक पहुंचा रही है, उनकी जॉब्स तक पहुंचा रही है. सो दिस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वर्क एज द लाइफ लाइन ऑफ एन इकोनॉमी. इकोनॉमी का कंसिडरेशन करना इम्पॉसिबल है अगर हमारे पास डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस अवेलेबल नहीं है. हमने एक केस स्टडी भी देखी कि हाउ whatever we read what departmental undertaking is practically possible and how these public sector organizations are impacting our life. So the very first public organization was departmental undertaking. Second, we are going to learn about is statutory corporation. But before learning it, how statutory corporation affect our life? I think you have heard about SBI, you have heard about LIC and you have also heard about RBI. जब भी जेब से नोट निकालते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है. क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? SBI क्या है, LIC क्या है? और सेम वे गवर्नमेंट कंपनीज. हमने तो अब तक जॉइंट स्टॉक कंपनीज के बारे में पढ़ा था, ये गवर्नमेंट कंपनीज कहां से आ गई? तो in next slides we are going to study about the statutory corporation and the government companies along with its uses, along the practical application and along with the case studies. अब ये चीज तो हम स्लाइड्स में पढ़ेंगे, बट इनका यूज क्या है? After covering all that topic,
we'll directly go to the uses and impact of public sector organization on the Indian economy. So let us move our video from board to slides. Hello students, in the previous part of the video we learnt about the departmental undertakings and the functioning of Indian economy and its dependency on the private sector and the public sector. And in this chapter we are studying all the public sector, and the first organization that we have covered up is the departmental undertaking. The second organization we are going to start today, and the second organization we are going to start today is the पब्लिक कॉरपोरेशन. पब्लिक कॉरपोरेशन या फिर इसका एक और नाम से हम जानेंगे, आपकी बुक में जो मिलेगा, दैट वुड बी स्टैचुरी कॉरपोरेशन. ठीक है. अब स्टैचुरी कॉरपोरेशन क्या होते हैं? स्टैचुरी कॉरपोरेशन और पब्लिक कॉरपोरेशन इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन which is established by a special act of central और state legislature. यानी कि जो आपके जितने भी स्टैचुरी कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, दे आर द ऑर्गेनाइजेशन, दे एग्जिस्ट बाय सम स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. मींस दे एग्जिस्ट फॉर देयर एग्जिस्टेंस. पार्लियामेंट, ईदर द स्टेट लेजिस्लेचर और द सेंट्रल legislature passed special act for that, and they exist only in the support of that act. Example, RBI. Do you guys know how RBI was established? RBI is established with the help of RBI Act 1935. And SBI के बारे में बता दूं, SBI was established with the help of Banking Regulation Act 1955. ठीक है. तो ऐसे ही एक पर्टिकुलर एक्ट से इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस होता है, एंड दैट स्पेशल एक्ट डिफाइन इट्स पावर, ड्यूटीज, फंक्शंस, इम्यूनिटीज एंड द पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट. यानी कि इसकी हायरिंग से लेके मैनेजमेंट तक सारी की सारी इंफॉर्मेशन आर गिवन इन दैट पर्टिकुलर एक्ट ओनली. Means the hiring of SBI, if we'll be talking about hiring of SBI, if we'll be talking about management in SBI, if we'll be talking about its autonomy, rights, expansion, functioning, all is written in that particular act, and they are governed with the help of that special act of parliament. ठीक है. तो पब्लिक कॉर्पोरेशन डिफाइन कैसे करेंगे? पब्लिक कॉर्पोरेशन और द स्टैचुरी कॉर्पोरेशन आर एन ऑर्गेनाइजेशन which comes into existence by special act of parliament, whether the central or state legislature. ठीक है. And that special act defined its autonomy, its functioning, its hiring and its management. Examples are given: life insurance, Indian Airlines, Air India, State Bank of India, ONGC, Oil and Natural Gas Commission. ठीक है. अब हमने पब्लिक कॉर्पोरेशन के बारे में जाना. पब्लिक कॉर्पोरेशन एग्जैक्टली है क्या, स्टैचुरी कॉर्पोरेशन है क्या एग्जैक्टली. अब हमारी जो पैटर्न है उसी के तहत हम देखेंगे अब इसके सम ऑफ द मेजर फीचर ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन और द स्टैचुरी कॉर्पोरेशन. फीचर की मैं अगर बात करूं, फीचर्स ऑफ स्टैचुरी कॉर्पोरेशन वन बाय वन लेके चलते हैं. फॉर्मेशन. अब फॉर्मेशन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. फॉर्म विद द स्पेशल एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर. यानी कि एक पर्टिकुलर एक्ट का पास होना जरूरी है. एग्जाम्पल मैंने आपको दिया किस तरह से SBI का एग्जिस्टेंस हुआ है, किस तरह से RBI का एग्जिस्टेंस हुआ है. केस स्टडी में हम LIC के बारे में और जानेंगे. ठीक है. सेकेंड जो फीचर है उसका, दीज आर द सेपरेट लीगल एंटिटी. ठीक है. अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो थे वो एक्चुअली गवर्नमेंट की सब्सिडरी थी, यानी दे वर गवर्नमेंट, बट स्टैचुरी कॉर्पोरेशन होल्ड्स द स्टेटस ऑफ एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड दे कैन बी sued like a company. Yes, they hold the status of separate legal entity. ये separate legal entity का status जो है वो hold करती हैं. ठीक है. उसके बाद मैनेजमेंट एंड कंट्रोल. देखिए इसका जो मैनेजमेंट निकल के आता है, द मैनेजमेंट डायरेक्टली कम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जिस एक्ट से इनका एग्जिस्टेंस हुआ है, एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स solely control these kind of organization. Finance, these are wholly financed by government.
ठीक है। अब देखो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और इसके फाइनेंस में एक छोटा सा अंतर है। एक चीज जो इनमें कॉमन है वो ये है कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और आपका स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन है, इसकी जो फाइनेंसिंग है वो गवर्नमेंट से आती है। लेकिन जो डिफरेंस ये है कि ये अपने जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो अपने रेवेन्यू को अपने एक्सपेंशन में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन होल्ड्स द पावर टू यूज दैट रेवेन्यू इन देयर ओन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, एंड दिस पॉइंट विल क्लासिफाई इन द पॉइंट ऑफ व्हाट, इन द पॉइंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आगे आएगा। ठीक, इसके बाद बोरोइंग पावर्स, यस दे हैव द बोरोइंग पावर्स। हमने एक पॉइंट पढ़ा था क्या कि स्टैच्यूटरी की डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग डू नॉट हैव बोरोइंग पावर्स, यानी रेलवे को कुछ पैसा उधार लेने की ज़रूरत है तो वो गवर्नमेंट से लेगा, यानी एक किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से ये मनी लैंड नहीं कर सकते। इनकी बोरोइंग पावर नील होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ दे आर सेपरेट लीगल एंटिटी दे हैव द बोरोइंग पावर। ठीक है, अब अथॉरिटी टू यूज रेवेन्यू के बारे में मैंने बता दिया कि किस तरह से हाउ दे हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज द रेवेन्यू वट एवर दे आर अर्निंग फॉर देयर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ये भी बताया मैंने कि किस तरह से अपनी इनकम को ये अपने आप को एक्सपेंड करने में यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बजट। देखिए इसका जो बजट है, दे प्रिपेयर देयर ओन बजट ईयरली अपने प्रिपेयर को बजट ये प्रिपेयर करते हैं। एंड ऑडिट, इनका जो ऑडिट है, ऑडिट अकाउंटिंग है, वो कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से हो सकते, इनकी ऑडिटिंग गवर्नमेंट की तरफ से होती है। एंड दे हैव पावर टू क्रिएट देयर ओन बजट्स। एंड द 8.10 फीचर इज अकाउंटेबिलिटी। दे आर अकाउंटेबल टू पब्लिक, दे आर अकाउंटेबल टू पब्लिक इन कंसर्न्ड लेजिस्लेचर, यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से इनका एग्जिस्टेंस है तो ये रिपोर्ट करेंगे बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोअर हाउस एंड द अपर हाउस, मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा। अगर स्टेट गवर्नमेंट से इनका लेजिस्लेचर है तो इनकी गवर्निंग होगी विधानसभा एंड विधान परिषद, मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, एंड द मेन मोटिव ऑफ स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन इज टू सर्व द पब्लिक। इनका एग्जिस्टेंस ही इसीलिए होता है जिससे कि पब्लिक को सर्व किया जा सके, उनको बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड कराई जा सके। ठीक है, तो दीज वर सम ऑफ द फीचर्स। अब अल्टीमेटली फीचर्स की मैं बात करूं तो आप फीचर्स के पॉइंट से ही अपने प्लस एंड माइनस यानी कि डिमेरिट्स एंड मेरिट्स खुद से जनरेट कर सकते हैं। तो लेट अस हैव अ लुक टुवर्ड्स इट्स सम ऑफ द मेरिट्स। ठीक है, मेरिट्स ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के कुछ जो मेजर मेरिट्स हैं वो है ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। अब ऑपरेशनल ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि इनके पास जो राइट्स होते हैं दे कैन यूज देयर राइट्स। ठीक है, मीन्स दे कैन एक्सपेंड देमसेल्व्स, मीन्स दे हैव राइट टू डिसाइड, अनलाइक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। In departmental undertaking, that particular organization has not right to decide how to expand, when to expand, and where to expand. But yes, they can expand themselves. They can grow. Like for the example, LIC and SBI has grown in a very decent way for like 50 to 70 years. Flexibility. एक पॉइंट जो फीचर है मैंने बताया था कि किस तरह से दे हैव राइट टू यूज देयर रेवेन्यू इन देयर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म फ्लेक्सिबिलिटी हियर। फ्लेक्सिबिलिटी टर्म का मतलब ये होता है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में एक प्रॉब्लम जो हमारे सामने ये थी कि हमारा जो इनकम हम अर्न कर रहे हैं, यानी कि जो इनकम कोई ऑर्गेनाइजेशन अर्न कर रहा है, इनकम रेलवे अगर अर्न कर रहा है तो वो इनकम सीधा सीधा गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिटेड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट चाहे उस पैसे को कहीं से भी लगाए, कैसे भी लगाए, दैट इज द पब्लिक मनी। बट स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन लाइक एसबीआई के साथ इस तरह ऐसा नहीं है, उस मनी को ये अपने एक्सपेंशन में भी यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद वर्क्स विद सर्विस मोटिव। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज that they work for service motive, not for profit making. They are not solely profit making organization. ये सिर्फ profit making organizations नहीं हैं। ठीक है, ये पब्लिक के सर्विस मोटिव के साथ काम करते हैं। फोर्थ is easy to raise funds. For such kind of organization
as they are flexible, it is easy for them to raise funds. ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और भी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, अपने एक्ट में दी गई फ्लेक्सिबिलिटीज़ की वजह से they have right and they can raise funds from other sources too. Accountability टर्म के बारे में मैंने बता दिया कि किस तरह से इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होने के बाद भी they are not free to do whatever they want. They'll have to report to the government as per the existence of state और central legislature. ठीक है, अब देख लेते हैं हम इसके कुछ डिमेरिट्स को. अब डिमेरिट्स क्या है? अब एज वी ऑलरेडी नो कि अल्टीमेटली दे वर्क विद द गवर्नमेंट. सो जब गवर्नमेंट के साथ हम काम करते हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है इन सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. पॉलिटिकल लीडर्स के का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, रिजिडिटी मीन्स दे आर रिजिड एज पर द दैट पर्टिकुलर एक्ट दैट दे हैव टू फॉलो. यानी एक्ट से बाहर जाके ये बिल्कुल काम नहीं कर सकते. अब हमने फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में जाना. फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल थी, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है एज दे हैव टू सबमिट द रिपोर्ट टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, इसके बाद इग्नोरिंग कॉमर्शियल अप्रोच. अब अल्टीमेटली ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए भी काम, ये 100% प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम नहीं कर सकते. रीज़न बिकॉज दे वर्क फॉर पब्लिक मोटिव. आप अगर ये चाहें, दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर ये चाहें कि ये अपने खुद के बेनिफिट के लिए काम कर लें तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. तो एक कॉमर्शियल अप्रोच होता है, ग्रोथ के लिए काम करना, प्रॉफिट के लिए काम करना. दे डोंट गेट दिस काइंड ऑफ कॉमर्शियल अप्रोच. तो हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा व्हाट आर स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन, हमने पढ़ा मेरिट्स ऑफ स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन, हमने पढ़ा डिमेरिट्स ऑफ स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन अलोंग विद इट्स फीचर्स. अब देख लेते हैं एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वॉट एवर वी हैव रेड इन स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन. एक एग्जाम्पल, एक केस स्टडी देख लेते हैं झट से कि किस तरह की केस स्टडीज पूछी जा सकती हैं इस टॉपिक से. ठीक है, ये केस स्टडी के बारे में बता दूं, ये केस स्टडी आपकी इजीली 4 से 5 मार्क्स में पूछी जा सकती है. ठीक है, आराम से 4 to 5 मार्क्स में केस स्टडी पूछी जा सकती है. एंड केस स्टडी के बारे में हमें हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि व्हेनेवर यू गाइज आर डूइंग केस स्टडी, बी एक्स्ट्रा अटेंटिव. ठीक है, बिकॉज एवरी केस स्टडी होल्ड्स वन हाईलाइटेड स्टेटमेंट एंड आंसर रिवॉल्व्स अराउंड दैट. अगर आप उस केस स्टडी के उस पर्टिकुलर हाईलाइटेड स्टेटमेंट पे पहुंच जाते हैं तो आपके लिए आंसर ढूंढना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है. ठीक है, तो लेट अस सी क्वेश्चन 3. विद एनैक्टमेंट ऑफ LIC एक्ट 1956. एक्ट गिवन है हमें कि LIC वॉज एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ एक्ट 1956. एन ऑटोनोमस बॉडी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वॉज formed. The act defines its power, duties and functions. It has separate legal entity. It is fully owned by government. It has independent financial policy and can raise funds by borrowing from public and government. However, it is not subject to any budgetary accounting of audit control like railways. Its annual report is present in Parliament every year. यानी कि LIC के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि किस तरह से LIC का एग्जिस्टेंस होता है एक एक्ट से, एंड ऑल द राइट्स, ऑल द इट्स फंक्शनिंग एंड ऑल इज गिवन बाय दैट पर्टिकुलर एक्ट. तो क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन क्या है? नेम द टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज रेफर्ड इन अबव केस. I don't have to tell you that LIC would be example of what? Statutory corporation or public corporation. Second, name the act under which it is formed. Name the act, LIC Act 1956. ठीक है, LIC was formed with LIC Act 1956. Name any other statutory corporation. Statutory corporation, any other statutory corporation. लिख दीजिए SBI, RBI, Air India. ठीक है, ONGC. D. State two feature of statutory corporation mentioned above.
ये आपको ढूंढ के लिखना है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, वहीं से आपको इसके 2 फीचर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जाना स्टैट्यूटरी कोऑपरेशन के बारे में। इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी वंडरफुल डे। Hello students, in the previous part of video we covered up by knowing the features, merits and demerits of statutory corporation, how statutory corporation are formed and how do they function with the help of that act of parliament. In this video we are going to continue our chapter along with the third type of public sector organization that I introduced to you in the very first introduction video, and that is government company. So what exactly a government company is? चलिए पहले तो what exactly a company is. Company where company means joint stock company. Company where two or more people come together, pool their resources, ठीक है, and share their investment and for to undergo business activities. There is no difference between the government company and a normal joint stock company. कंपनीज के बारे में हम एक चीज़ जानते हैं कि उसकी जो ओनरशिप है वो उसकी शेयर होल्डिंग से डिसाइड होती है. सो एनी कंपनी कैन बी गवर्नमेंट कंपनी बाय हैविंग द शेयर ऑफ 51% ऑफ दैट कंपनी. किसी भी कंपनी के अगर 51% शेयर गवर्नमेंट के पास हैं, दैट कंपनी विल बी क्राउंड एज गवर्नमेंट कंपनी. कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं है, केवल एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए, दैट इज द ओनरशिप टू द 51% शेयर ऑफ एनी ऑफ द कंपनी. ठीक है, तो देख लेते हैं एज पर द स्लाइड व्हाट एग्जैक्टली अ गवर्नमेंट कंपनी इज. अ गवर्नमेंट कंपनी is a company which has at least 51% of the paid up shares capital is held by government. ठीक है, अब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एनी पार्टली स्टेट गवर्नमेंट, इसमें सेंट्रल हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट आ सकती है, या फिर कुछ समय के लिए बनी हुई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट भी आपकी गवर्नमेंट कंपनी की ओनर्स हो सकती हैं. ठीक है, अब गवर्नमेंट कंपनी इंक्लूड द कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ सच अ कंपनी. यानी कि जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो एक कंपनी की सब्सिडी, जो इन्हीं कंपनीज की जो है वो एज अ सब्सिडरी वर्क करती हैं. एग्जांपल्स स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ठीक है, मारुति उद्योग लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल हो गया है, इसमें भेल स्टैंड फॉर भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसमें सेल आ जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें गेल आ जाएगा गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. ठीक है, तो ये हैं आपके सम ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज. देखिए, गवर्नमेंट कंपनी आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा आपको एक्सप्लेनेशन देना है. ऑल द कंपनीज द गवर्नमेंट, एनी कंपनी कैन बी गवर्नमेंट कंपनी बाय हैविंग द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 51% ऑफ एनी कंपनी. ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब यही होता है कि उनके पास 51% जो है 51% की शेयर होल्डिंग है उनके पास. ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं क्या, फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी पे. इसके बाद हम फीचर्स पे चलते हैं. फीचर्स की मैं बात करूं, सबसे पहले द फॉर्मेशन ऑफ सच काइंड ऑफ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी. देखिए, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और द प्राइवेट कंपनी. Government company follows all the provision of the Companies Act 1956 and that 1956 has been replaced by Companies Act 2013. यानी अब जो Companies Act फॉलो होता है that is the Companies Act 2013. ठीक है, इसके बाद मैनेजमेंट एंड कंट्रोल. अब सेपरेट लीगल एंटिटी. यस, जैसा कि हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी में देखा था कि कंपनी होल्ड्स द स्टेटस ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन एंड दे आर सेपरेट लीगल एंटिटी. अब सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि कंपनी होल्ड्स द स्टेटस ऑफ अ पर्सन, मीन्स they cannot do the materialistic thing like a human, means they cannot eat food, but yes, they can come into contract, they can be in partnership,
दे कैन sue और दे कैन बी sued, ठीक है। इसके बाद मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। अब कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज डन बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, और उसके मेंबर जो हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स। यानी कि इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो नॉमिनेशन होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, ठीक है। स्टाफिंग इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, its employees are not civil servants, they are appointed by the company on its own terms and conditions। गवर्नमेंट कंपनी के लिए की अपॉइंटमेंट्स के लिए हर कंपनी की अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती हैं, तो वो सेपरेट हायरिंग करती हैं, यानी इसके लिए कोई एक्ट नहीं है स्पेशल। अब जैसे सेल है, गेल है, भेल है, इनके लिए एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट हायरिंग भी करती हैं, कभी कभी ये एग्ज़ाम्स के थ्रू भी हायरिंग करती हैं। ये इनका अपनी ऑटोनॉमी है, ये इनके अपने तरीके हैं फंक्शन करने के। फाइनेंस, अब फाइनेंस की बात करूं तो फाइनेंस से किसी भी तरह से रेज कर सकती हैं, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से चाहे जनरल पब्लिक की तरफ से, दे आर फ्री टू रेज द फाइनेंस। दे ऑल्सो हैव द बोरोइंग कैपेसिटी, ठीक है। अब फ्लेक्सिबिलिटी टर्म की बात करूं जो लास्ट वाला है, पावर टू यूज रेवेन्यू, यस दे हैव पावर टू यूज देयर रेवेन्यू इन देयर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए ये अपने रेवेन्यू को यूज कर सकती हैं, एंड दैट इज द फीचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अब ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, जो नेक्स्ट जो पॉइंट हम स्टडी करेंगे दैट इज ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। अब ऑपरेशनल ऑटोनॉमी क्या कहता है? इट रन्स ऑन कॉमर्शियल प्रिंसिपल्स लाइक प्राइवेट एंटरप्राइजेस एंड एंजॉयज हायर डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। यानी कि इनके अपने कॉमर्शियल प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी यस दे कैन वर्क फॉर देयर ओन प्रॉफिट अर्निंग, ये प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम करते हैं, ठीक है। और इनके लिए जैसे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, उसमें मिनिस्ट्री सारा कंट्रोल करती है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में एक्ट कंट्रोल करता है, ये अपने आप को खुद कंट्रोल करते हैं। यानी कि अगर भेल की मैं बात करूं तो भेल अपने आप को कंट्रोल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की मैं बात करूं, भेल दैट स्टैंड्स फॉर भेल, ठीक है। तो वहाँ पे उनकी इंटरनल मैनेजमेंट का डिसीजन उनके ही मैनेजर्स के द्वारा लिया जाता है, हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज फ्रॉम नोक टू कॉर्नर, ठीक है। दैट इज वाई इट इज टू बी सेड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी मीन्स दे हैव राइट टू डिसाइड। एनुअल रिपोर्ट्स, इट्स एनुअल रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स along with the audit report are to be presented to the legislature as per the Companies Act, ठीक है। इसकी जो, अब देखो, जब हम जनरल प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी में क्या है, साल में हर कंपनी अपनी एक रिपोर्ट इशू करती है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। तो ऐसे ही ये लोग, गवर्नमेंट इनकी मेजर शेयर होल्डर है, तो गवर्नमेंट के लिए रिपोर्ट इशू करते हैं सारी गवर्नमेंट कंपनी जो आपकी जाती हैं किसमें, जो आपकी जाती हैं स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अगर स्टेट गवर्नमेंट ओन कर रही है तो स्टेट के पास जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ओन कर रही है तो सेंट्रल के पास जाएगी, ठीक है। और ये आपकी शो होगी बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, एंड असेंबलीज। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। अब देखिए ऑडिटर टर्म का मतलब क्या होता है, टू चेक इट्स अकाउंटिंग्स। इट्स ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि इसकी जो ऑडिटर्स आते हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है। देखिए अल्टीमेटली इनमें प्राइवेट सेक्टर्स का भी पैसा लग रहा है, 51% ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं कि 51-52% गवर्नमेंट के पास है, बाकी प्राइवेट के पास है। तो यानी कि वर्क तो दोनों एक साथ कर रहे हैं ना। तो गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए जो ऑडिटर होता है वो अपनी तरफ से भेजती है कि किसी भी तरह की मैनिपुलेटिंग या फॉर्जरी गवर्नमेंट के साथ ना हो, ठीक है। इसके बाद पावर टू बोरो, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि हाउ इट हैज़ पावर टू बोरो, लाइक इट होल्ड्स द स्टेटस ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन। अब इसके बाद कुछ मेरिट्स देख लेते हैं। मेरिट से आपका इजी टू फॉर्म, जैसे कंपनी फॉर्म होती है वैसे ही फॉर्मेशन होता है आपका किसका, वैसे ही फॉर्मेशन होगा आपका इन गवर्नमेंट कंपनीज का, बिकॉज एज पर कंपनीज एक्ट 2013 जो हमने पढ़ा, इसमें जो हमने पढ़ा अपने उस चैप्टर में फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में। उसके बाद फ्लैक्स
फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रेजिंग कैपिटल, ये पॉइंट ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि हाउ दे आर फ्लेक्सिबल टू रेज देयर कैपिटल फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, एंड they have operational flexibility, means they have right to decide their management, how they are to be managed. They don't follow the steps of red tapeism. They have right on their own management. उसके बाद फैसिलिटेट प्राइवेट पार्टिसिपेशन, और किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरह इसमें आपके प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट कर सकता है. जस्ट राइट नाउ मैंने एग्जांपल दिया था कि these kind of public organizations are comprises of both public and private participation. ठीक है, और इसमें अमेंडमेंट जो हैं वो इजी होते हैं. देखो रेलवे में कोई अमेंडमेंट अगर होगा, यानी रेलवे में कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है. आपको एक ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा, फिर उस पर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आर्ग्यूमेंट्स के बाद वो जाके कोई अमेंडमेंट लाया जा सकता है. लेकिन यहाँ पे इजीली चेंजेस पॉसिबल होते हैं बिजनेस में. ठीक है, नेक्स्ट डिमेरिट की बात करूँ. डिमेरिट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो होती है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी. यहाँ पे आंसरेबिलिटी फीचर जो है वो लैक करता है. रीज़न क्या है? बिकॉज समटाइम द सिचुएशन ट्रैप्स इन बिटवीन द प्राइवेट एंड पब्लिक हैंड्स. ठीक है, प्राइवेट एंड पब्लिक हैंड्स के बीच में कभी कभी सिचुएशन फंस के रह जाती है. दैट्स वाई इट हैज़ द पोजिशन ऑफ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, अब एब्सेंस ऑफ लीगल ऑटोनॉमी. अब हमने ऑटोनॉमी यानी कि राइट के बारे में जाना, दैट दे होल्ड्स द राइट, बट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ज़्यादा होने की वजह से समटाइम्स दे डोंट हैव रियल पावर इन देयर हैंड्स, एंड दैट इफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ दीज कंपनीज. Ultimately, as they are designated to be government companies, and a government company will have to live under the fear of public accountability, means they'll have to answer to public, they'll have to submit their report to parliaments time to time. ठीक है, तो ये एक fear बना रहता है. इसके बाद लैक ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, एज द गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ दिस कंपनी एंड द गवर्नमेंट माइट नॉट हैव द फुल एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है. उसके बाद लैक ऑफ कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज एंड मैनेजमेंट. इनकी पॉलिसीज एंड मैनेजमेंट में भी डिसकंटिन्यूटी रहती है, बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, एंड इन गवर्नमेंट चेंजेस होने की वजह से गवर्नमेंट जब अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करती रहती है, जिसकी वजह से इन कंपनीज के बिजनेस ऑपरेशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. तो ये था आपका गवर्नमेंट कंपनीज. व्हाट आर द गवर्नमेंट कंपनीज? ठीक है, एंड मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, फीचर ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड डिमेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज. सो लेट अस हैव अ लुक टुवर्ड्स वन प्रैक्टिकल केस स्टडी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, गवर्नमेंट कंपनीज. तो देख लेते हैं केस स्टडी. गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज कैरिंग ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ एनर्जी एंड पावर. Majority of its shares are held by the Government of India. It is registered under Companies Act 1956 and enjoy all the characteristics of a company. The board of directors are appointed by the government. The board and shareholders are responsible for the efficient working of the company. The company prepares its annual report and submit to the appropriate authorities. तो ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका 3 to 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो देख लेते हैं एक बार ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. So the first part is name the type of public sector enterprise referred in our para. I don't have to tell, as the Companies Act is given, it is the government company. B, government buys shares in whose name? Government buys shares in the name of government. ठीक है, गवर्नमेंट अपने नेम से शेयर लेती है. उसके बाद वेयर डज गवर्नमेंट कंपनीज सबमिट देयर रिपोर्ट? गवर्नमेंट कंपनीज सबमिट देयर रिपोर्ट टू द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट, वेदर द स्टेट और सेंटर, यानी कि अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, एंड फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज. तो स्टूडेंट्स ये था आपका गवर्नमेंट कंपनीज. So thank you students, have a very wonderful day. In next video we are going to study about the impact of public sector to Indian economy. तब तक के लिए thank you students, stay home, stay safe.